Rahim. So, dear students, आज हम एक्टिनाइड केमिस्ट्री के बारे में बेसिक्स जो इसके मेन पॉइंट्स हैं इनको हम जानने की कोशिश करेंगे। एक्टिनाइड केमिस्ट्री जो है इसमें यूजुअली क्वेश्चन उतने ज़्यादा पूछे नहीं जाते इन एनी एग्जाम, वेदर इट इज़ योर नॉर्मल थ्योरी एग्जाम और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। You think from your NEET, JEE, or then you move to the entrance examination of universities or colleges, and then you think of NEET, this NET, GATE, whatever exams. Usually actinide chemistry में question नहीं होते हैं। इसमें एक रीज़न तो ये हमें पता है क्योंकि actinides में usually radioactive elements हैं। So when we know that if there is radioactive elements, तो it's difficult to deal with. तो इसलिए ज़्यादा रिसर्च इन पे नहीं हुई है। जब ज़्यादा रिसर्च नहीं हुई तो डेटा हमारे पास ना अवेलेबल नहीं है, इसलिए यूजुअली इनको ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता है। बट देन देर आर सम पॉइंट्स विच वन शुड नो सो दैट इफ द क्वेश्चंस आस्क्ड सो वी शुड बी इन अ पोजीशन टू टू ओप टू दोज क्वेश्चंस। तो मैंने यहाँ पे कुछ बेसिक्स कलेक्ट किए हुए हैं where there are probable chances a question may be asked in any exam. So actinides, we know that this is also your F block element like the lanthanides. जैसे आपका lanthanide है F block, this is another series of the F block elements. Now why they are called F block elements, we have discussed that since the last electron enters into the F subshell, the moment you move from the left to right in the periodic table, the last electron enters into the F subshell. And we know that they are also called the inner transition elements. So inner transition elements में आते हैं lanthanides and actinides. So talking about the actinides, यहाँ पे आप screen पे देख सकते हैं. So you can see here, this is your actinium, atomic number 89. Actinium के बाद जब आप देखेंगे 89 के बाद, you will see from atomic number 90 to atomic number 103. ये जो 14 एलिमेंट्स हैं इनको बोला जाता है एक्टिनाइड्स। अब यहाँ देख सकते हो they have taken out, so these are the actinides. So यहाँ से देख सकते हो। Now यहाँ पे why they are named as actinium, क्योंकि ये आते हैं एक्टिनियम के बाद, they follow the actinium. Same जैसे lanthanum में था, elements following lanthanum they are called lanthanides. So basically lanthanum and actinium they actually do not belong to the F transition series, लेकिन इन F block elements का नाम दिया गया है इन elements पे, ठीक है। So let's move to the basics. अब देख लीजिए यहाँ पे। So before we start, let me first take the pointer out. 14 elements. So they are basically 14 elements. कहाँ से? From thorium with atomic number 90 to lawrencium with atomic number 103. ये यहाँ आप देख लीजिए, these are the 14 elements. We have actinium, thorium, protactinium, uranium, neptunium, plutonium, americium, curium, berkelium, californium, and strontium, fermium, mendelevium, nobelium and lawrencium. आप ये भी यहाँ पे थोड़ा सा समझ सकते हैं कि जो नेम है इनका यूजुअली इट्स बेस्ड ऑन द साइंटिस्ट और इट्स बेस्ड ऑन द स्टीज नॉर्मली, ठीक है। तो ये आपकी सीरीज हो गई। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है दैट इज Rn, विच इज रेडियम नोबल गैस, नियरेस्ट नोबल गैस, एटॉमिक नंबर 88। तो 88 आप यहां से लीजिए, फिर 5f 1 to 14 मीन्स इनका जो 5f ऑर्बिटल है आउटर मोस्ट, उसमें 1 से 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दैट मीन्स जब आप लेफ्ट से राइट मूव करेंगे पीरियोडिक टेबल में, व्हेन यू मूव फ्रॉम योर एक्टिनियम to lawrencium, total electrons present in the f orbital can be 1 to 14. And also we have d orbitals, 6d which contains 0 to 1 electrons, and then 7s it always contains 2 electrons. So this is the general electronic configuration. ये सेम है जैसा कि lanthanide में था, leaving the exceptions. यहाँ पे exceptions में मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। if अगर कहीं पे आपको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ जाए so that you'll achieve the completely filled electronic configuration or half filled, in that case you will have the anomalous behavior. Otherwise you have to just fill one electrons when you move from left to right. So this is all over your lanthanides, the actinide electronic configuration. In case of lanthanides, यहाँ पे it was 4f, यहाँ पे it was 5d, and this was 6s, ठीक है। Now, last electron enters into the f orbital,
hence it's called a F5F series also. Lanthanides के केस में it was 4F, so that was called as the 4F series. कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर बात करें इट इज +3, सेम जैसा कि लैंथेनाइड में था, वहां पे भी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इट वाज +3. नाउ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है इन द लैंथेनाइड केमिस्ट्री एंड एक्टिनाइड, दैट इज द लैंथेनाइड कंट्रैक्शन. यहां पे भी होता है लैंथेनाइड कंट्रैक्शन जैसा कि यहां पे भी होता है एक्टिनाइड कॉन्सेंट्रेशन जैसा कि लैंथेनाइड कंट्रैक्शन में होता है. सो व्हाट इट इज, रेगुलर एंड स्टेडी डिक्रीज इन द साइज. लैंथेनाइड आयंस का साइज स्टेडीली डिक्रीज होना व्हेन यू मूव फ्रॉम थोरियम टू लॉरेंशियम. यहां पे क्या इंपॉर्टेंट है, इट इज मोर प्रोनाउंस्ड देन लैंथेनाइड्स. मींस लैंथेनाइड्स में भी स्टेडी डिक्रीज इन द साइड व्हेन यू मूव फ्रॉम लेफ्ट राइट, लेकिन यहां पे ज्यादा स्टेडी डिक्रीज है. इट्स मोर प्रोनाउंस्ड इन लैंथेनाइड्स. ऐसा क्यों, लेट्स सी. इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2f ऑर्बिटल्स. नाउ यहां पे आप देख सकते हैं सिर्फ 5f में इलेक्ट्रॉन जा रहा है. जब 5f में इलेक्ट्रॉन जा रहा है इसका मतलब 4f भी प्रेजेंट है, 4f में भी f ऑर्बिटल है, सो इट इज 2f ऑर्बिटल्स, 4f एंड 5f. कंट्री टू लैंथेनाइड जिसमें ओनली 4f था. ना 4f उनकी शेप डिफ्यूज्ड शेप है. व्हेन द शेप इज डिफ्यूज्ड, तो जो आउटर मोस्ट जो डिफ्यूज्ड शेप की वजह से व्हाट दे डू, दे ऑफर द पुअर शील्डिंग. तो दो ऑर्बिटल्स है जो डिफ्यूज्ड शेप दिखाते हैं, सो दे हैव द पुअर शील्डिंग इफेक्ट. देन 4f ऑर्बिटल जो कि लैंथेनाइड्स में था, यहां पे ज्यादा पुअर शील्डिंग है, सो जो कॉन्ट्रैक्शन है दैट्स मोर प्रोनाउंस्ड देन द लैंथेनाइड्स. नाउ एक्टिनाइड आयंस दे आर मोस्टली कलर्ड. जैसे मैंने लैंथेनाइड में भी कहा दे आर कलर्ड, लेकिन उनमें जो कलर था दैट वाज, इफ यू रिमेंबर हमने कहा था वहां पे एक तो FF ट्रांजिशन, D to D ट्रांजिशन, सॉरी वहां पे था लैंथेनाइड्स में F to D ट्रांजिशन, 4F to 5D ट्रांजिशन एंड MLCT मेटल लिगेंड चार्ज ट्रांसफर. यहाँ पे है F to F transition, means electron upon absorption of UV visible radiation, it will go from F to F, that is 5F to 5F, or electron can also go from 5F to 6D, or the transition, the color can be also due to metal ligand charge transfer, means charge transfer from metal to the ligand. तो यहाँ पे जो color है in the lanthanides, that is due to all these three transitions. ये important है. Now, talking about the magnetic moment is lower than lanthanides. अब हमने इसको डिस्कस किया है पहले भी. जब भी किसी भी ट्रांजिशन एलिमेंट में या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट में आपका कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, तो दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. यहाँ पे भी सिंस वी हैव इलेक्ट्रॉन्स इन द f ऑर्बिटल्स, so they have the magnetic moment, but magnetic moment is lower than the lanthanides. Important. क्यों? Due to the fact that 5f electrons are projected more in the space and they get affected, quenched by the external environment. क्या मतलब? Let's say this is your nucleus and somewhere we have the 5f orbitals, और 5f orbitals का size ज्यादा है as compared to 4f orbitals in the lanthanides. जब साइज ज्यादा है तो सीधी सी बात है, ड्यू टू द डिफ्यूज्ड शेप दे आर मोर प्रोजेक्टेड इन द स्पेस. तो जब लिगेंड्स आ जाएंगे दे कैन इजीली मेक बॉन्ड विद देम. सो जब बॉन्ड बन जाएगा, जो लोन फ्री इलेक्ट्रॉन था ना, उसकी जो मोशन है दैट गेट्स रिस्ट्रिक्टेड. जब मोशन रिस्ट्रिक्ट हो गई, मैग्नेटिक मूवमेंट गेट्स अफेक्टेड, मैग्नेटिक मूवमेंट गेट्स डिक्रीज्ड. इसको कहते हैं, इस मैग्नेटिक कैरेक्टर को कम होना ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द बॉन्ड फॉर्मेशन और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लिगेंड्स. ठीक, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द क्वंचिंग इन शॉर्ट. सो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट जो है दैट इज लोअर देन लैंथेनाइड्स. क्यों? बिकॉज इट हैज 5f इलेक्ट्रॉन्स, वायर 5 इलेक्ट्रॉन्स जो ऑर्बिटल्स है दे आर मोर प्रोजेक्टेड इन द स्पेस, हेंस दे गेट क्वंच्ड बाय द एक्सटर्नल लिगैंड एनवायरनमेंट. नाउ एक्टिनाइड जो है FM3+, मींस ऑक्सीडेशन स्टेट +3, दे आर पैरामैग्नेटिक एंड दे आर यूजुअली रेडियो एक्टिव. ये इंपॉर्टेंट है. लैंथेनाइड्स में ऐसा कोई रेडियो एक्टिव नेचर नहीं है, लेकिन एक्टिनाइड्स में एक तो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर नॉर्मली. क्यों? बिकॉज दे यूजुअली हैव द फ्री अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द d ऑर्बिटल्स, एंड आल्सो दे आर रेडियो एक्टिव एक्सेप्ट एक्टिनियम. मेरे एक्टिनियम को छोड़ के दे आर ऑल रेडियो एक्टिव. तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स है. यू कैन रिमेंबर दीज पॉइंट्स. इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड, दैट विल बी आस्क्ड फ्रॉम दिस पोर्शन. इवन इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इन्हीं पॉइंट से क्वेश्चन आता है.
So I have tried to put the comparison between lanthanide and actinide also simultaneously. लेकिन इसके लिए you should first know at least the lanthanide chemistry. Now talking about the application part, अब इसको कहाँ पे हम यूज कर लेते हैं? लैंथनाइड्स का यूज क्या है? देखिए, फर्स्ट इज जो गैस मेंटल्स होते हैं हमारे पास, आपने देखा होगा लाइटनिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं गैस मेंटल. जो मेंटल वहां पे हम यूज कर लेते हैं, वो जो लंप वर्क करता है, जहां से लाइट आती है, उसमें होता है थोरियम. So thorium is your, this is TH thorium, and thorium belongs to, is the second element of the actinides. So application इसका एक ये हो गया. दूसरा यूरेनियम 235 आपने सुना होगा, इट्स यूज्ड इन द न्यूक्लियर रिएक्टर्स. हम जानते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स में जो चेन रिएक्शन होती है, फिर लॉट ऑफ एनर्जी इज जनरेटेड, वहां से वी कैन एक्चुअली make use for electricity generation and other purposes also. Since lot of energy is generated from those nuclear reactions, we जहाँ जो element use करते हैं, that is your uranium. So that's also your actinide. Third application is MOX fuel. MOX fuel में क्या होता है? जो आपके actinide से यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम, इन एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स, कार्बाइड्स एंड नाइट्राइड्स, मीन्स इन एलिमेंट्स की कॉम्बिनेशन विद ऑक्सीजन, in elements की combination with carbon and nitrogen, so they are called as actinide, oxides, carbide and nitrides. ये हम फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, that's called the MOX fuel. ठीक है. फोर्थ एप्लीकेशन जो है एविएशन इंडस्ट्री. एविएशन मतलब स्पेस में जो हम सैटेलाइट भेजते हैं या कोई प्रॉपर ऊपर से जहाज भेजते रहते हैं, उसमें भी we use this magnesium thorium, so it has an application in the aviation industry. And then one more application is the use of थोरियम एंड यूरेनियम. इन दो एलिमेंट्स का हम यूज करते हैं इनके आइसोटोप्स का इन द रेडियोमेट्रिक डेटिंग. रेडियोमेट्रिक डेटिंग जिस तरह हमारे पास कार्बन डेटिंग है, द टेक्निक यूज टू नो द एज, ठीक है, फॉसिल्स की एज. यहाँ पे भी हम वी कैन यूज दीज टू एलिमेंट्स टू फाइंड द एज ऑफ स्टार्स एंड अदर सैटेलाइट बॉडीज. सो दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज द रेडियोमेट्रिक डेटिंग. तो ये इसका अदर एप्लीकेशन है. ये कुछ 5 बेसिक एप्लीकेशंस है as far as the actinide chemistry is concerned. So these are the basic points जहां से क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, इवन आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में. So at least if you don't go through whole actinide chemistry, try to remember these. If you have questions, get back, write down message, write down the comments. कोई भी क्वेश्चन हो, so will be there for help inshallah. So this is all about your actinide chemistry. इसके अलावा जो मैंने आज पढ़ाया है, इसी का नोट होगा आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक होगी, यहाँ पे लिखा हुआ है कंसाइड सीरीज. तो कंसाइड नोट्स फ्री पीडीएफ फाइल होगी, आप इस लिंक पे डाउनलोड करके इसको आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, एंड देन यू कैन यूज इट फॉर द एग्जाम पर्पस और इवन फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. सो दिस इज ऑल फॉर द एक्टिनाइड केमिस्ट्री. थैंक यू.